Good morning, my dear students. Happy New Year to all of you. Myself, Babita Yadav from US Academy and Institute of Gorakhpur. Today, I am going to teach you Business Studies, Chapter 10, International Business. First of all, let's see the meaning of what is the meaning of international business. When we are talking about the international, it is beyond our boundaries. Manufacturing and trading beyond the boundaries of a country is known as a international business. जो बिजनेस दो कंट्री के बीच में होती है, बियॉन्ड द बाउंड्री हम जो बिजनेस करते हैं, इट इज़ बिजनेस विद इन द टू कंट्रीज आर कॉल्ड द इंटरनेशनल बिजनेस. टेक एग्जाम्पल, एनी अदर कंट्री विच इज़ डूइंग द बिजनेस विद द इंडिया. कोई भी कंट्री का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो, नेपाल हो, थाईलैंड हो. कोई भी कंट्री जब इंडिया के साथ बिजनेस करती है या इंडिया उनके साथ बाइंग एंड सेलिंग करती है, सो इस बिजनेस को हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस. नाउ अकॉर्डिंग टू द रोजर बेनेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? अकॉर्डिंग टू द रोजर बेनेट is a given definition. International business involves commercial activities that cross national frontiers. International business involve commercial activities. Definitely when we are doing the buying and selling activity, it is related with our commercial activities. So involve the commercial activities cross the national. So in this point you have to remember the point is commercial activities. Involve the commercial activities that cross the national. Now what is the type of international business? How we can do the international business? There is export, import and interport. Many of the students are aware about with the export and import word. Now this is new for you. Interport. Let's see first the meaning of export. What is the meaning of export? Export means when we are selling goods and services to other country. जैसे हम इंडिया में हैं, इंडिया से यूएस में कुछ गुड्स को सेल कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं अदर कंट्री को, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा. लाइक आवर कंट्री इज मोस्ट फेमस फॉर द स्पाइसेस, कॉटन. इफ़ वी आर सेलिंग अ कॉटन और स्पाइसेस टू अदर कंट्री, so it is called a export. Means selling of a goods and services to foreign countries is called a export. Now what is the meaning of import? Import means what? Buying. Like a selling also, we are buying a goods and services also, because the natural differences are there. Natural all the world, if you can see in the India also, you can see there are different landforms are there, different climates are there, the different soil is there. So we cannot produce all the things in a state, or we cannot produce all the things in our country. So for that purpose we are exporting some things, and same like as अदर कंट्रीज आर ऑल्सो नॉट एबल टू प्रोड्यूस द सेम थिंग. हर कंट्री अपने लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते. इसके लिए या तो वो इम्पोर्ट पे डिपेंड होते हैं या फिर एक्सपोर्ट पे. अब हमारी कंट्री में जो चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है, लाइक अ पेट्रोलियम, वी कैन नॉट प्रोड्यूस पेट्रोलियम इन आवर कंट्री, राइट. सो पेट्रोलियम के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन अनदर कंट्री. सो बाकी कंट्री से जब हम पेट्रोलियम परचेस करते हैं, सो वी आर बाइंग द पेट्रोलियम फ्रॉम द, कहाँ से आप बाई करेंगे? फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. सो फॉरेन कंट्रीज से जब हम बाई करेंगे पेट्रोलियम या एनी अदर गुड्स, सो इट इज़ कॉल्ड अ इम्पोर्ट. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटरपोर्ट? एंटरपोर्ट मीन्स व्हाट? importing the goods for the purpose of export, not for the purpose of consumption. टेक एग्जाम्पल, अगर आपने यूएस से रबर परचेस किया है, यू बाय द रबर फ्रॉम द यूएस, लेकिन आप उसको कंज्यूम नहीं करने वाले. द सेम रबर यू आर सेलिंग टू द थाईलैंड और इन एनी अदर कंट्री. सो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, इफ़ यू आर परचेसिंग समथिंग, इट इज़ कॉल्ड अ एंटरपोर्ट. इसे हम री एक्सपोर्ट भी कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? री एक्सपोर्ट भी कहते हैं, कि हमने कोई चीज़ परचेस किया नॉट फॉर द कंजम्पशन, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, तो इसे हम कहते हैं एंटर पोर्ट. आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट. मीन्स बाइंग अ गुड्स. इम्पोर्ट, सॉरी, export means selling a goods, import means buying a goods, and interport means buying goods for the purpose of reselling it. So now here we understood the types of. Now
In the international business, there are some problems of international business. When we are going to do the international business, some problems are arises. So let's see what are their problems are there. First of all, legal procedures. If we in India we are doing selling, buying and goods, so there are no more legal procedures are there. like in the previous chapter we learn about the trade. सो ट्रेड में आपने देखा है, होलसेल ट्रेड देखा है, रिटेल ट्रेड देखा है, उसमें बहुत सारी कोई लीगल प्रोसीजर्स नहीं होती हैं. बट इफ़ यू वांट टू डू द बिजनेस विद द अदर कंट्री, when we are talking about the foreign countries, so we have to do some legal procedures. That legal procedure we will see in the next questions. Restrictions. Different countries have their different rules and regulations. They have a restrictions over their some products. हर कंट्री का एक अलग अलग रूल है, कहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. जैसे कुछ कंट्रीज़ में अल्कोहल रेस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे सेल करना. विद इन इंडिया also some state are restricted to sell the alcohol products, so we cannot sell alcohol. लाइक अ पेट एनिमल्स, कुछ एनिमल्स को हम पेट एनिमल्स नहीं बना सकते या उसको सेल नहीं कर सकते. सो दिस इज़ क्राइम फॉर सम कंट्रीज. सो उस एनिमल्स में हम बिजनेस नहीं कर सकते. सो देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ओवर द some product in the country. So this is also a basic problem for the buying and selling in the international business. Definitely high risk होता है विद इन द कंट्री. हम लोग जो गुड्स एंड सेल करते हैं दे आर वेरी नॉट वेरी फार अवे. बट आप जब इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो इट्स वेरी फार अवे. हम गुड्स को सेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द शिपिंग या किसी वे से, तो उसमें क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, गुड्स पहुँचने में टाइम लगता है, राइट ना. सो देयर आर हाई रिस्क इन अ selling a goods and services in a different countries. Different language. Definitely यहाँ पे हर एक कंट्री का अलग अलग लैंग्वेज है. वी आर मोर अवेयर अबाउट विद द, हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. बट बाहर की जो कंट्रीज़ होती हैं, जैसे जापान का अलग लैंग्वेज है, चाइना का अलग लैंग्वेज है. सो देयर आर द different language also. So this is also problem for the language barriers in a different countries. Arrangement of a foreign currency, this is most important point. जब आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में हमें क्या चाहिए, अगर हम कोई गुड्स आप बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं या बाहर से हम क्या कर रहे हैं, किसी गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उनको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा. इफ़ यू एक्सपोर्ट द गुड्स, सो यू विल गेट द फॉरेन करेंसी. बट अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी गुड्स को, तो हमें उसमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी. तो अरेंजमेंट ऑफ अ फॉरेन करेंसी. सो अगर हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है, सो वी हैव टू अरेंज द फॉरेन करेंसी ऑल्सो. अगर आप विद इन द स्टेट, विद इन द कंट्री बिजनेस करते हो, सो वी आर नो नीड टू अरेंज द करेंसी. यहाँ पे जो करेंसी इंडिया की करेंसी यूज़ होगी, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में पर्टिकुलर कंट्री का हमें करेंसी अरेंजमेंट करना पड़ता है. सो दिस इज़ अवर ऑल्सो प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में क्या आते हैं, लीगल प्रोसीजर्स हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, सम गुड्स एंड सर्विसेज आर रेस्ट्रिक्टेड इन सम कंट्रीज. हाई रिस्क है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, अरेंजमेंट ऑफ अ फॉरेन करेंसी, हमें फॉरेन करेंसी में अरेंजमेंट करना पड़ता है. लाइक द प्रॉब्लम्स, वी हैविंग सम बेनिफिट ऑल्सो. In everything we having some problems and some positive things, some negative things. Like in international business we having some problems, but still we having a benefit of international business also. So what are the benefit to the nations, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, सो व्हाट बेनिफिट्स वी विल गिव टू द नेशंस. फॉरेन एक्सचेंज, सबसे पहले तो हम फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करेंगे. ग्रोथ ऑफ नेशन, नेशन का ग्रोथ होगा. हम जैसे लग्जरी गुड्स या बाकी जो हैवी मशीनरीज इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो इससे क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ग्रोथ ऑफ द नेशंस, हमारे कंट्री का भी क्या होता है, ग्रोथ होता है. जब कंट्री का ग्रोथ होगा, लोगों को अच्छी क्वालिटी गुड्स मिलेंगे, we are able to purchase the goods, we are get the employment also. So with the help of that, standard of living also increasing. तो हमारा standard of living भी क्या हो जाएगा, इसे increase होगा. तो बेनिफिट टू द नेशन में क्या आएगा, अर्न फॉरेन एक्सचेंज, आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा. ग्रोथ ऑफ द नेशन, नेशन का ग्रोथ होगा. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा क्या होगा, इम्प्रूव हो गया.
नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट टू फर्म। फर्म को क्या बेनिफिट मिलेगी, इंडिविजुअल जो फर्म बिजनेस कर रहा है फॉरेन कंट्री से, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। इंक्रीजिंग अ प्रॉफिट्स, लाइक अगर वो 1 टन गुड्स प्रोड्यूस करता है, 1 टन सेल करता है इन इंडिया में, अगर वो उसका गुड्स इन एक्सपोर्ट भी होने लगा, बाहर की कंट्रीज में जाने लगा, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज। तो प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीजिंग इन अ प्रॉफिट आल्सो। सो यहाँ पे वो प्रॉफिट को क्या करेंगे, अपने इंक्रीज करेंगे। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, अब उनके ब्रांचेस सिर्फ इंडिया में थे, अगर वो फॉरेन कंट्री से डील करें, फॉरेन कंट्री से बिजनेस करें, सो डेफिनेटली दे हैविंग अ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। वो वहाँ पे भी उनके ब्रांचेस होंगे, वहाँ पे भी अपना बिजनेस क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। सो वी विल गेट द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट आल्सो। इम्प्रूव बिजनेस विजन, बिजनेस का विजन जो है, बिजनेस की जो गोल्स हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इफ़ विद इन द कंट्री ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20%, 30% प्रॉफिट था, अब वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 60% हो जाएगा। उनका जो टर्न ओवर था वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इम्प्रूविंग द विजन ऑफ द पर्टिकुलर फर्म। बेनिफिट टू द इंटरनेशनल बिजनेस में बेनिफिट नेशंस को क्या है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा, ग्रोथ ऑफ द नेशंस होगा, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। एक फर्म को बेनिफिट होगा, इंक्रीजिंग अ प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, एंड इम्प्रूविंग द बिजनेस विजन। These two topics you will revise it and make the notes in your copy. Thank you so much.